तरफ मिलने का चाहो मेरे को छोटी सी मतलब दिखाऊँ ना बाकायदा उन्हें सारा कुछ बनाया होया शरीर का जिन्ना भी पिंजड़े हड्डियाँ है सुख बनने वाली ठीक है तो सारा कुछ उन्होंने बनाया होया ਇਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਸ ਟਾਈਮ हाँ जी ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ है नहीं ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡਤਾ ਹੋਇਆ अच्छा तो ये नहीं पता आज तो कर दो 4-5 साल पहले संगत की थी 4-5 साल ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ 11-12 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ नहीं 4-5 साल नहीं मैं नहीं खुल गए 11-12 साल हो ही गए उन्हें ਹਾਂ ਇਹ हाँ ਵਾਲੇ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी जी ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਹੈਗੇ ਆ। बस लेके गए ही नहीं थी उधर मेला ही जिन्हें बड़ा बेर के बल ਹਾਂ उधर सत्संग ज्ञान किया ही ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ 'ਚ ਬਰਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਘਰ 'ਚ ਕਲੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲੇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਲਯੁਗ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਲਯੁਗ ਜਦੋਂ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਘਰ 'ਚ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ हाँ जी ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਆ ਉਹ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ हाँ जी ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਘਰ 'ਚੋਂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਘਰ 'ਚ ਆਮਦਨੀ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਆ हाँ जी ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਬਰਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ तो ਜਪਦੇ बच्चे भी जेड़ा माहौल ਤੇ बनाना ਫਿਰ पैंदा ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ हाँ जी इस जेड़े लाइन च माहौल बनाना ਤੇ पैंदा ਜਿੱਥੇ ਕਲਯੁਗ ਆ ਉੱਥੇ ਕਲੇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੋਵੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗੀ ਬੱਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਏ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਹੌਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਨ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਲక్ష్ਮੀ ਚੰਦ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਬਾਹ ਕਰਕੇ ਲਾਇਆ ਹੇਠਾਂ तो परमात्मा ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿਨੀ ਰਾਤ ਜਪੀਏ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਜੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਗਏ ਸੀ ਗੁਜਰਾਤ ਵੱਲ ਤੇ ਕਾਮਰਾਨ ਰਾਜਾ ਹੀ ਕਾਮਰਾਨ ਰਾਜਾ ਹੀ ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜ ਗਿਆ ਸੀ ਬੁਖਾਰ ਤੇ ਬੁਖਾਰ ਚੜ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਕੰਬਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੋਦੜੀ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਖੋ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕੰਬਨ ਦੇ ਤੋ ਕਾਮਰਾਨ ਰਾਜਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਮਿਲਣ ਆਏਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੁਖਾਰ ਮੈਨੂੰ ਚੜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਚੜ ਦਿੱਤਾ ਬੜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਭੈਣ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹਾਂ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਦੋਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਯੂਪੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਧਰਮ ਹੈ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੀ ਦੇਖੋ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਮਾਇਣ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਲੀਲਾएं लेकिन ये नहीं पता सी सानू देखो गुरु नानक की चीज़ है रामचंद्र जी का किस तरह होया सतयुग त्रेता द्वापर ये चीज़ों के बारे सानू कोई चीज़ का नहीं पता सी थोड़े बहुत भजन पाप करते रहते सी ये वास्ते ज्ञान ही जदों इधरों आया यूपीयों इधर आया जो किसी समय ऐसा अपना जीवन सी कि उदों जब तक वहीं दो पाइया नहीं पी लेंदे सी तो उदों तक अपना टेंट नहीं खड़ा होंदा इन्ना बीड़ी सिगरेट गांजा ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਸਭ ਕੁਝ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਸ਼ਾ ਐਸਾ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਰੇ ਅਫਗਨ ਭਰੇ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੀ ਆਇਆ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹੁਰੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮੈਂ ਗੋਆ ਸੁੱਟਦਾ ਸੀ ਪਿਛਲਾ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਗੋਆ ਸੁੱਟਦਾ ਸੀ ਤੇ ਗੋਆ ਸੁੱਟਦਿਆਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਹੋਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ ਉੱਧਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਉੱਧਰ ਤੇ ਉੱਧਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਨੱਚਣ ਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲਾਨ ਉੱਧਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਢਦੇ ਨਾ ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਹੜੀ ਕੱਚੀ ਸ਼ਰਾਬ ਉਹ ਕੱਢਦੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਪੀ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਾਬੂ ਨਾ ਆਵਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਬਣ ਕੇ ਤੋ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ
ਮੱਝਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਗੀਤ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨੱਚਦੇ ਨੱਚਦੇ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਉਹਨੇ ਪੱਠੀ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਲੱਕੜਾਂ ਦੀ ਪੱਠੀ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹਲਵਾਈ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਪੱਠੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਇੰਨੇ ਸੜ ਗਏ ਸਾਰੇ, ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਧਰ ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਹੁਰੇ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਓ ਹੋਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਾਬੂ ਨਾ ਆਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਮੱਝਾਂ ਦੀ ਖੁਰਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਮੋਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ 8 ਜਮਾਤਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਮਸਾਈ, ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਰਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੱਝਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੱਟੀ ਜਾਣ, ਚੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਮੱਝਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਭਗਤ ਹੈਗਾ ਚ ਰੱਬ ਦਾ ਕਾਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਟੋ। ਉਹ ਚੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਭਗਤ ਜਿਹੜਾ ਫੌਜੀ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੇਵਤਾ ਸੀ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੱਚੇ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਉਧਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਪੀ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਹੈ ਹੀ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਕੀ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਸਾਰੇ ਹਰ ਥਾਂ 'ਚ ਹਰ ਤਰੀਕੇ 'ਚ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਰਲੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ, और कुछ तमाशा देखने वाले भी जान कि चट्टन जी हासा पाई जाते, तो इन्हें की किया मैनू खोलिया तो खोल के मैनू नवाया उस टाइम ते, कहते तुम सालो आओ चलो, वो तो चलो डंगर है ही, तुम उन्होंने डंगर बेहतर है, तो तुसी भी डंगर है, तुहानू अकल नहीं हैगी इंसानियत की चीज़ हैगी, वो भी इंसान है जीव हैगा। उन्होंने मैनू कढ़ के लिया, तो फिर दूसरे दिन जी उन्होंने मैनू किया लम्मा पाता, कहते बाद च नवाया उसी टाइम तो सिर ते मेरा पानी पाँदा रहा। पर सवेर हुई, सवेर जो बराते गए, तो जो शाम के बरात चले, कहते तेन हुण तेन यार पीनी नहीं बिल्कुल, मैं नहीं पीवांगा। उन्हें मैंने प्यार ना समझाया, तो जो मैंने मैं पीती नहीं, तो उन्हें शामी क्या कहते बे तेरा दिल करता पीन नूं, मैंने साहब करदा तो कही, अब देना नहीं इन्हें, मैनू क्या करा की। फिर उन्होंने कहा चलो ठीक, फिर उन्होंने कहा देखो हुण मैं पीवांगा, इनू पिलाउनी भी है, तो तुहाडे सामने दो कोई इन्ने शरारत नहीं करनी। उन्हें बड़े प्यार ना मैनू पाया लागे, तो उन्हें थोड़ा जि पानी पा दिंदा ही, थोड़ा जि पैग पा दिता, तो मैं पी लेंदा। उन्हें नाल ही जड़ी बस बैठा रहा अरमाना, फिर थोड़ी देर 10-15 मिनट थोड़ी थोड़ी प्याउंदे रहे, 1 घंटा अपना पींदे रहे, कोई गल बाद च मैं सो गया। सुबह नूं फिर मैं मज्जा उज्जा ते उन्हां दा गोहा सुट्टन लग्या ते काम करन लग्या, पट्ठे पुट्ठे पाया मैंने उन्हां च। ते बाद च उन्हें दूसरे दिन जो दूजा दिन है बरात हो गई, बरात च बाद जो जान दी वारी, कहंदे बेटा ये दस तू पढ़िया किन्ना है। देखो परमात्मा ने गुरु रामदास जी की नगरी तो मैंने कहा बसथना जो जिला पीलीभीत है, जिते नानकपुरी टांडा है, जिहड़ा नानक मता साहिब, वो साढ़े लागे ही है। तो उत्थे जरा कोठी है, उधर रहने वाले सी, उत्थों ही लिया उन्होंने। वो बाद उन्होंने की किया, सानू कहते तू इंज कर पढ़िया की किन्ना, मैं बस मैं जीजा जी जिस तरह हो तुम भी है, सानू माता बना दिता, तो ताड़ी जरा आज प्रभ है, प्रभ नूं प्राइज समझिया इन्होंने, तो ताड़ी कुड़ी है उन्होंने भैन भी कहेगा, ताड़े जो उन्होंने घर वाला होगा और जबाई उन्होंने भी जीजा जी कहेगा। तो मैं क्या जीजा जी दसो, जीजा जी मैं पढ़िया तो नहीं, मैं 8 जमाता पढ़ी हैं। 8 जमाता पढ़ी, अच्छा। कहते हैं तू इंज कर, जे 8 जमाता पढ़ी हैं तो तू इत्थे लिख हिंदी च, तो उन्हें लिख पतीला, तो उन्हें काम टेंट हाउस का सी, तो हुण भी अपना टेंट हाउस का, तो उन्हें मैं पतीला लिखिया, लिख टेबल, मैं टेबल लिख दिता, तो सारा कुछ लिखता, चाननी चम्मच रस्से सारा मैं लिख दिता। कि पढ़ने तो पहले परमात्मा की कृपा हिंदी पढ़िया ही उधर, तो संस्कृत उधर मैं जो साडा सब्जेक्ट ही यूपी च, जो पहले 5वीं क्लास तक अपना जो 5वीं की साडा 6वीं 8वीं क्लास तक उधर पहला ये सब्जेक्ट संस्कृत का रहिंदा सी। ठीक है, तो संस्कृत एक महापुरुष हुए हैं सच्चिदानंद जी, उन्हें संस्कृत का कहते माता शत्रु, कहते माता शत्रु पिता बैरी एन बालो ना पाटता। वो किन्नी हर धर्म च, तो हम तुम गल आ गई कि उन्होंने अपने हिसाब ने समझाया, तो हर धर्म च उन्होंने अपने धर्म समझाया। उन्होंने कहा माता शत्रु पिता बैरी, कहते माता शत्रु दुश्मन है, तो पिता बैरी है, तो किना दे कि माता पिता देवते के समान है, गुरु ने गुरबाणी च क्या है, लेकिन उन्होंने भी नहीं किया कि जी माता शत्रु जे दुश्मन है पिता, उन्होंने ये मतलब समझो, कहते माता शत्रु पिता बैरी ए नबालो ना पढ़ता, जिन्हों ने अपने बच्चों को चंगी शिक्षा नहीं दी। ए ने माने अपने वालों ने बच्चों को नहीं चंगा पढ़ाया लिखाया नहीं, ए नबालो ना पढ़ता ना शोभते, वो बच्चा है जो शोभा नहीं देते, हंस मध्य सभा मध्य बकोए था। उस परमात्मा की कृपा अहो जी हुई, बड़ा कुछ
ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਜੋ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲੈ ਚਲਾਂਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੈਨੇਜਰ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੀ ਇਹ ਲੈ ਚਲੋ, ਇਧਰ ਗੋਆ ਸੁੱਟਦਾ ਪਿਆ, ਪੱਠੇ ਪਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ 500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ, 500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਇਹ ਲੈ ਚਲੋ, ਮੈਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਇੱਧਰ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਉਂਦੇ ਆਇਆ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭਈਆ ਫਲਾਣਾ ਢੀਂਗ ਹੈ, ਹਰ ਬੁਰੀ ਤਰੀਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕਾਰੀਗਰ ਸੀ। ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਬ ਤੋਂ ਜੋ ਇੰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਲੰਧਰ ਬਾਈਪਾਸ ਨਹੀਂ ਜਲੰਧਰ ਚੁੰਗੀ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਾਈਪਾਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਦੁਬਰਜੀ ਬਾਈਪਾਸ, ਦੁਬਰਜੀ ਤੇ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੂਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਰੇਡੀ ਤੇ ਕੱਲਾ 10 ਟੇਬਲ ਕੁਰਸੀ ਪਤੀਲੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 3 4 ਕੁੰਟਲ ਕੱਲਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਟੈਂਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਨੀਟੂ ਵਰਗੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਟਰ ਵਰਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੈਸੇ ਹੋਣੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਣ, ਰਾਜਾ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਬਣ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਇੱਧਰ, ਉਧਰ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਸੀ, ਚਲੋ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਔਰ ਆਪਣਾ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬੀੜ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੋਚ ਦੱਸਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੀੜ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਲਾਸ਼ ਮੁਰਦਾ ਵਰਗੀ ਨਾ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਉਧਰ ਤੇ ਨਾ ਸਮਝ ਸੀ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। तो लागे जाके उस कमरे च उन्होंने साढ़े जोड़ा जीजा दे जे सौरे ही वो भी नहीं बाबा जी के कमरे जो पाठ रखाया ही उधर नहीं बढ़न देंगे ही, नहीं तू नहीं जाना, तू भैया तंबाकू खाते फलान अंदर नहीं बढ़ना, भैया मैं नहीं बढ़ता ही। तो मेरे पता की लगे जब तक बढ़ांगे नहीं, कोई माड़ा बंदा चंगी संगत दे विच नहीं बैठ दोगे तो ही भजा दोगे, ठीक है। तो अगर उन्होंने पता की लगेगा, अरे भाई माड़ा बंदा जो चंगी संगत बैठेगा ताई ज्ञान आओ ना, अनपढ़ बंदा कोई अपना इस क्लास च पढ़ेगा, ठीक है। तो गुरु नानक की क्लास तो कभी बैठे ही नहीं आप, सू पता कि ले गुरु नानक की चीज़। जो गुरु रामदास, हाँ मेला भी गया उस तो पहले, गुरु नानक मते दा बड़ा जिहड़ा होलियां तो दिवाली तक दिन पहले लगता मेला, बाद इधर नानक मता साहिब का बड़ा मेले भी गया, लेकिन ये मत्था भी टेका है उस जगह, इन्नी पवित्र जगह, उस बारे ज्ञान अभी तक नहीं सी, उन तक ज्ञान नहीं सी। मत्था टेका ही नानक मता साहिब उस तो पहला, लेकिन ज्ञान नहीं शुद्ध चीज। वो बाद बाबा आया इधर अमृतसर आके जो करी जाते तो की कहते भाई वो जो बीड़ साहब जो लेके जाते तो बाद च उन्होंने प्रकाश किया। मैं टेंट लाउंदा सी, टेंट लाउंदा, टेंट ला के जो पर्दा लाउंदा उधर महाराज का प्रकाश लिया, बाकायदा उन्हें हुक्मनामा लिता, बाद पता लेता उत्थे जे गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश किया। ਹੁਣ ਤਾਂ ਭਾਈ ਕਰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਕੀ ਹੀ ਬਿਰਤੀ ਸਾਡੀ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਧਰ ਮੂਰਤੀਆਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਜਨ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, तो मूर्ति रखते हैं, मूर्ति की पूजा करते हैं, ठीक है। तो ये किताब नूं मत्था क्यों टेकते नहीं, सारों किताब नूं की तूने फिर थोड़ा थोड़ा कुछ पंजाबी समझना लग पई। तो हिंदी थोड़ी नहीं बोलना, हिंदी थोड़ी नहीं बोलना कि कुत्ता राजबाली है फिर चक्की चकट है, लेकिन आदत बन जाती नहीं, जिन्ना मर्जी आप पंजाबी बोलने की कोशिश करिए नहीं पंजाबी बोल सकते। वो बाद परमात्मा कृपा हुई इस लाइन च आप पै गए। फिर की किया जी उधर टेंट लग, एक बार जो बलवंतर सिंह रंगीला की जी कैसेट लगी ही उस कीर्तन कर रहे सी, तो उस वेले सुनता रहिंदा सी। भगत नामदेव जी कहते ने आनी ले कागद मन राम नामा बेधी ले, मन नू राम दे नाम ले काम से जरूर कर, हाथ कारबिल, ठीक है, चित्यार बल। मैं उधर टेंट जरूर लगाता रहिंदा ही, तो जदों जिथे भी कीर्तन हुंदा उस टाइम ते तो मोहना हुंदा ही, तो उसमें सुनता रहिंदा, बोली समझ आई गई है कि कीर्तन की है, कि किस तरह भजन गाते, किस तरह कीर्तन करते, किस तरह पाठ करते। तो इन्हां दी कथा जो करते बलविंदर सिंह रंगीला तो समझ आउण लग पई सी। तो जिस वेले समझ आउण लग पे मैं भी उधर आ गया बाबा जी के पास।
ਉਧਰ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਜੇ ਉਹਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਚਲੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਕੱਟੇ ਗਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਪਰੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੈਚੀ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਖੋਪੜੀ ਦੇਖੋ ਲਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਉਸ ਦਿਨ 'ਚ ਸਾਡਾ ਵੀ ਮਨ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ 23ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਹੈ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰ ਦੀਆ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਵਿਨਾਸ਼, ਹਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਰੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਸੰਤ ਭੇਟਿਆ ਨਾਨਕ ਮਨ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਫਿਰ ਮਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੁਦਰਤ ਹੀ ਅਗਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਬੰਦਾ, कबीर साहब कहते ना हम किया न करेंगे ना कुछ कर सके शरीर, जो कियो सो हर कियो भयो कबीर कबीर। उससे प्रभु सच्चे पातशाह की कथा सुनते रहे अकाल पुरख की कृपा नाल, ते उन्होंने कुछ बनना भी ही बनाना भी गुरु नानक सच्चे पातशाह जी ने जो चरण लगे तो उन्हें वेखण ते उन्हों की संगत बैठे ने जो सुन रहे ने ते गुरसिखां की संगत दे विच चाहे बेशक अपना काम करन ले, लेकिन जब ध्यान इधर आ गया तो परमात्मा ने कृपा भी कर देती। फिर असी सोचा असी भी अमृत छकांगे। अब अमृत की छकना उसते कई कथा है, जिस तरह गुरु सिखां दी ना कहते ਜਿਹੜੇ रामचंद्र जी की श्री रामचंद्र जी का 14 कला संपूर्ण होए, श्री कृष्ण जी ਨੂੰ ਗਿਆ कि 16 कला संपूर्ण, ठीक है, तो साढ़े गुरु नानक सच्चे पातशाह जी की कला का कोई अंत नहीं। ये भट्टां दे सभी क्या अनंत कला लै ठाकुर चढ़ियो, आप नारायण कला तार जग में परवर। कहते वो जी उन्होंने कला का कोई अंतर, कला है कि कला का मतलब यह है कि जी जब जन्म ते एंड तक सच को ही बोलना, झूठ नहीं उन्होंने मिलावट करनी, सच का ही कोई भी मोड़ आए आप हर जे थोड़ी देर सच बोले अगला मोड़ है आप उस वेले झूठ मार जाते, वो मोड़ ते उसे वेले अकाल पुरख के पास झूठ कहना अनंत कला लेटा। कहते जी कला का मतलब यह है कि सच बोलना, वो बाद दूसरी कोई झूठ नहीं बोलना, ये भी एक कला है, ठीक है। सारिया कला तो उन्होंने कला दी उन्होंने भगतां दी गुरसिखां दी भी कला का कोई अंत नहीं है। आज गुरु रामदास सच्चे पातशाह अपनी भी अगर गुरु कथा अगर एक पेश कर दी जाए तो साड़ी भी कला भी इन्नी उम्र च जो जो परमात्मा ने करामाता कर दित्तियां तो तुसीं जाने जाने है पर देखिया ही है साढ़े इहो जी गल ही आप संगत की तुहाडे नाल सारा कुछ। तो उस वेले की सबसे पहले जोड़ी हाँ उस तो पहले असी जो शराब पींदे ही उस वेले चलती ही उहदी ओड़ी गाने दियां कष्टां रखी साढ़े सरदार जी ने, वो गाने जियां जी हैगी सागर सम्मी दी जिहड़ा चमकीला दियां कष्टां, तो उन्होंने करके उन्होंने पहले सुनता रहा, उन्होंने सुन के मैं गाना गाउन लग पिया, फिर गाना फिर की किया वो ना इन्हां कोल गुरबाणी दियां कैसटां ही शुरू तो इन्हां दे गुरबाणी दियां जिहड़ी हैगी कथा ही सुखमनी साहब दी जिहड़ी कैसट उन्होंने मैंने रिकॉर्डर रीलें कटवा के पहले मैंने भरे जिहड़े दूजे गाने जिहड़े चमकीला दे होर जे गाने पंजाबी गाने वो याद किए गाने वो गाने दे करके वो बाद जदों परमात्मा की कृपा हुई इधर उदों जदों कथा सुनी भगत सिंह लागे बलविंदर सिंह रगीला जी ने उन्होंने भाई तारू सिंह जी उदों बैराग चढ़ गया असी भी हुण सिंह सजांगे पर असी कहते श्री सुखमनी साहिब का हाले तक असीं संथ्या नहीं की, गुरु ग्रंथ साहिब संथ्या नहीं की, तो गुरु रामदास कृपा ऐसी हैगी कि प्रभु है वो संथ्या किस तरह हुई कि जिस तरह फिर वही किया वही कष्टा फिर सुखमनी साहिब का पाठ जब से सबसे पहले गुरसखी लांच पढ़िया सुखमनी साहिब का पाठ करके ठीक पाठ देखो करते रहे पाठ स्टार्टिंग की तो पाठ की करते जिस तरह हैगा हाँ जी गुरबाणी है गुरबाणी जो गग्गा हैगा ये जिहड़े हिंदी के जिन्हें नहीं है ना अखरां दे नाल रलते मिलते हैं, ठीक गग्गा मम्मा सस्सा ठीक है हा हा, तो इन्होंने वास्ते मैंने ये टैका उका वास्ते नहीं जान मैं उन्होंने समझ लिया। और वो भी किस तरह जिस ताड़े वर्गे महापुरुष किसी भैन जी पढ़े लिखे मनी वर्गे आ गए उत्थे आउंदे सी उन्होंने कहीदा भाई ये दसो एक जे बोर्ड च लिखा होंदा गुरु रामदास टेंट हाउस ये किस तरह लिखा जे ये किहड़ा अखर है ये गग्गा हैगा ये की थल्ले तो साढ़े कहते छोटू ऊ की मात्रे
ਮਾਤਰਾ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਔਕੜ, ਉਕੜ, ਔਕੜ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਬੜਾ ਆਕਾ ਡੰਡਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਨਾ ਲਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਉਲਰ ਜੇ ਇਹ ਸਾਰਾ वो इस करके वही गुरबाणी सीखे इस तरीका इस गुरसिੱਖੀ सीखे। ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇ, ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਇਹ तो समझ में आई आती, सुख रोग भया तो भया में जो नहीं पढ़े अनपढ़ होगा उन्हें भैया, ठीक है, करते नहीं से भैया करते नहीं भैया, आप करते जो नहीं पढ़ा अनपढ़ हैगा तो आप तो सीधे तो वो जी पंक्ति कहती ने दुख दारू सुख रोग भया जा सुख ताम न हुई तू करता करना मन में नहीं जाहो करिन हुई बलहारी कुदरत बसया तेरा अंत न जाए लगे। फिर इसी तरीके की वो जी रिकॉर्डिंग की कह रही है तो मैं की पढ़ रहा, फिर उन्होंने शुद्ध इस तरह किया। एक आर डी साढ़े लागे ही उसने कुछ सुखमनी साहब वास्ते मात्रा वाले लगा मात्रा इस तरह बेटा जो पढ़ करना जो रैया तो ही पढ़ रहा इन्हों रहा कर, इस तरह करके पढ़ के सुखमनी साहब का पढ़। फिर प्रभु की इतनी कृपा हुई 5 पाठ सुखमनी साहब के कर लेंदे ही ना, कि कथा जी उस वेले जोर इन्हों का बहुत ज़्यादा ही भाई गुरकवाल सिंह जी का, बलविंदर सिंह रगीला और भाई दविंदर सिंह सोढ़ी इन्हों की कष्ट ज़्यादा ही जोर ही पहले जी चीज़ें ही हरबंस जगादी वाले बहुत ही ज़्यादा ये चीज़ें धारणा ज़्यादा पढ़ी जाती हैं पहला, अब तो बहुत घट हो गई, पहले बहुत ज़्यादा पढ़ी जाती है। इन्हों की कथा सुनते बाबा की कृपा। फिर 5 पाठ सुखमनी साहब का करके फिर प्रसादा शकीदा ही उस टाइम परमात्मा वही भगती आज खा रहे परमात्मा ने बहुत कुछ दिता इस टाइम। अगे कथा सुने कल भी शुरू करांगे, फिर तुम आप दसोगे कि ये साड़ी जीवनी वो बाद बाबा जी कृपा किया 5 पाठ सुखमनी साहब का करने लगा। फिर मैं क्या भी मैं अमृत छकांगा मन च बढ़िया। फिर अं पहले केस रखे तो उधर यूपी च 5 साल पिंड नहीं गया यूपी, उधर इन्हों के सहुरे उत्ते रिपोर्ट करती साड़ी माँ ने, तो उन्होंने कहा साड़ा मुंडा उधर मार दिता जाके फलाना आया ही नहीं इधर आया। फिर उधरों उधरों आए मैनू लेके गए तो साड़ा पराड़ा तुम देखे ही हो वो मैनू ले उधर ले गया कि नहीं जान देंगे उन्होंने। तो मेरे उस वेले छोटे छोटे इन्ने बाल होए तो आ जी भैन ही इधर को मैं की करता थोड़ी गुत ना थोड़ी जी लैके वो माड़ी जा जो गुत बना देती ही मेरी छोड़ी मेडी करके छोड़ी बना देती सी। तो लोग कई लोग हंसते भी तू हाला भैया देखो और सरदार बनेगा फलाना पंजाबी बनेगा तू नहीं बन सकता छड़ बड़ा बुरा लगता बड़ा भैड़ा लगता। मैं कहा कोई गल करिए हंसी जाओ जो मरी जाएगा तू भैन मेरी कर दे उन्होंने जो मैं पैरी पै जाता ही मेरी मीनी कर दे मैं करके बस परना थोड़ा थोड़ा बन के अपना करी गया। तो सुखमनी साहब के पाठ ने सानू इत्थे तक पहुँचाया। उस वेले 5 पाठ सुखमनी साहब करने फिर अमृत छकी देखो प्रसाद छकीदा ही प्रभु की तरफ टाइम खुला मिल जाता है। अब तो टेंट जगह जगह टेंट टाइम नहीं मिलता है, पहले तो टामा दुकाना होंदियां ही तो उसके टाइम खुला मिल जाता है। टेंट ला के बाइक बैठे पाठ कर रहे हैं सारे मैनू उधर दे सारे मैनू कहते भी वास्तव देखो बड़ा ही भगत बंदा है पाल जो वो भगत कहता है मैनू बड़ा ही उदम चढ़ता है परमात्मा। फिर मैं एक पाठ और करांगा अरे बड़ा भगत है जो प्रशंसा सुनने उन्होंने और उदम होता है पाठ करदे परमात्मा कृपा वो ही। एक दिन मैं क्या अमृत छकांगा तो साढ़े जिते जो सुक्के तलाब के लागे उधर रहिंदा ही उधर की होया उधर जरा एक नामधारी सी गुरचरण सिंह होर ही वो कहते तेनों अहीं अपना अमृत छकावांगे। अमृत मैं क्या मैं अमृत सिंह सजागा वो सामने ही कर दुकान ही यही वो नामधारी है उन्होंने कहा तो तेनों अपना अमृत छकावांगे जो तेनों छड़िए वो चिट्टा परना बनते हैं पजामी पीढ़ी पाते ले गए छोटी सीधा च उन्होंने की किया भाई मैं हुण मैं निंदा भली कहो कि नहीं वो भी बढ़िया है बड़ी वड्डी उन्होंने जी हैगी शहादत उन्होंने बहुत वड्डी है नामधारियों की जी है उन्होंने जो साहबजादे होए 2 साहबजादे उन्होंने जी फालिया ही उन्होंने उन्होंने शहीदी वधिया है लेकिन जो सब अपनी जगह सही है। गुरु गोबिंद सिंह जी कहते कहूँ बेदरीत कहूँ तास्यों विपरीत कहूँ त्रिगुण अतीत कहूँ सरगुण समेत हो। 10वें ग्रंथ से जी विचित्र नाटक क्या है कहीं कहूँ बेदरीत कि हे अकाल पुरख जे तू वेदां नूं पढ़ रहा गुरु गोबिंद सिंह कह रहे
ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੂੰ ਬੇਦ ਰੀਤ, ਕਿ ਜੇ ਬੇਦਾਂ ਦੀ ਰੀਤਾਂ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇਰਾ ਹੀ ਦੀ ਕੀ ਜੋਤ ਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੂੰ ਬੇਦਰੀਤ ਕਹੂੰ ਤਾਸਿਓਂ ਵਿਪਰੀਤ, ਜੇ ਬੇਦਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜਾ ਰਿਹਾ हे ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਹੂੰ ਬੇਦਰੀਤ ਕਹੂੰ ਤਾਸਿਓਂ ਵਿਪਰੀਤ, ਕਹੂੰ ਤਿਰਗੁਣ ਅਤੀਤ, ਕਹੇ हे ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। कहूँ सरगुण समेत हो, कतहूँ पेखारी हो के मांगत फिरत पीक, कहूँ महादान हो के मांगे वो धन देत हो, कहूँ महाराजन को दीजत ने दान, कहूँ महाराजन ते छीर छित लेत हो, कहूँ फेउल हो के भले बेग से, कहे सो नचात बाँ कथों तय कैसे। वो अकाल पुरख ने ऐसी प्रभु कहे हर रूप में परमात्मा तो ही है। वो मैं अगर चलो भाई असी छक लवांगे, उस वेले पर पजामी पाई चिट्टी ਉਹ ਭਾਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਉਸ ਲਾਈਨ 'ਚ। ਉਹ ਗਿਆ ਤੇ ਉਧਰ ਸੇ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਸੀਧਾ, ਛੋਟੀ ਸੀਧਾ ਹੈਗੀ ਉਧਰ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸੀਧਾ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਉਧਰ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸੀਧਾ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਾਮ ਦੇਣਾ, ਕਿ ਨਾਮ ਦੇਣਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਧਰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਕੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਕੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਸਜਾ ਦਿਓ, ਛਕਾ ਦਿਓ, ਕੱਲ ਬਣਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਮੂਵੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਮੂਵੀ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਨੂੰ। तो उन्हें महापुरुषों ने क्या कहते चलो भाई कल दा लिया ऐ छका दो, उन्हें चलो करो सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु, मैंने वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी फतेह, ये क्या चीज़ है, कहने नहीं सतनाम वाहेगुरु करो। मैं सत्य बचन चलो जो कह रहे ठीक चल रहे। थोड़े दिन उन्होंने का भी बौड़ा ही नहीं गिरा, उन्होंने मैनू दिता जी एक गुटका बड़ा बड़ा, उस कई बाणियाँ उत्ते जी चंडी दी वार भी तो कई भी जी गुरदसम ग्रंथ की बाणी, कई बाणी उच्चे पढ़ी हुई तो करते रहा जिन्ना कुछ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ करता रहा। तो उन्होंने मैंने कहा कहते तेन नाम देने, नाम दिता, नाम की नाम वही है वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, कहने बस बाहर नहीं दसना। तो साढ़े गुरु नानक सच्चे पातशाह ने की किया, आप जपो अब रह नाम जपावो, ठीक है नाम वही है। मैं नहीं कहता मैनू आज मैं कह रहा परमात्मा बहुत कुछ दिता है। तो जो गुरु नानक देव गुरसिखा के घर का जूठा खादा, ये अंदर देखो नमक खादा, वो अकाल पुरख ने अपने आप ही प्रभु ने मत दी है। तो उन्होंने कहा सत्तर वो भी वाहेगुरु जाप उन्होंने कराते हैं, वो भी नामधारी सिंह जी उन्हें छकाया। बस एक कट्टरता बड़ी तगड़ी दस दी, कट्टरता ये रख दी कि उन्होंने कहा जो इशनान करना जो लैटरिंग आ जाए तो उदों भी तुसी उस वेले नहाना नहा के पाठ बैठना, वो जड़ा पेशाब करना फिर भी जाना, बस इतने तो साड़ी गल रही। एक दिन सानू लग गई टट्टियाँ परमात्मा कृपा ना, ठीक है। तो प्रभु सच्चे पातशाह वो जो है लैटरिन से बैठ रहे हमने कृपा सच्चे पातशाह जी दोबारा मन नहीं मननी, मन नहीं बाज देती, ठीक है। कि जो मन से जो दिल से जोग साजे वो जोगिन बही जाए, पिया जिसको चाहे सुहागन बही है। कि जे अगर देखो ते दिलों अगर जोग है, अगर दिलों कर रहा है उन्होंने तू जप, जे दिले नहीं मन रहा तेनों नाम जपन का की फायदा, की तेनों देखो इन्हें नाम लेने का फायदा। जे तेरा मन मन दे ताही उन्होंने कहा मन चंगा कठौती में गंगा, भक्त रविदास जी ने कहता है मैं नहीं, उन्होंने परमात्मा कृपा करती। वो दे बाद चौकाल पर उन्होंने बड़ा कुछ कृपा की थी। वो करद्या चे उन्होंने कहा मैं बाबू ये दसो जी उन्होंने बड़ी बड़ी कृपान तो ये इन्होंने जे सानू दी एक माला जी धागे की बनी हुई, उन्होंने वो जपते रहे वाहेगुरु जपते रहे जिन्ना चिर पहुँच जब उन्होंने चलो वो भी चलो प्रभु करना सी, ऐसा होना सी, हम नहीं कर सकते, जो होना ही होने को नहीं टाल सकते, जैसा ही करना सी ता इस सच्चे मार्ग असी आए इतों तक। प्रभु ने कृपा मैं कहा भाई ये यार बड़ी बड़ी कृपाना होंदियां हैगियां ते जी वो करते तो भाई खंडे बाटे का अमृत छकाउंदे, वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुरचेला, ठीक है। मैंने वो चीज़ सानू नज़र नहीं आई महापुरुषों, तो वो सानू चाहिए। कहते नहीं 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 ये उनसे बड़े हैं। उन्होंने कहा जो गुरचरण सिंह जी हुई वो कहते उस तो बड़े हैं,
मैंने वाहिगुरू से जो बाड़े शायद सारे ही बड्डे है, लेकिन मेरा मन नहीं बच्चा। मैं भाई फिर मैं की कीता ते फिर वो जरा ज्ञानी चेत सिंह का मुंडा त्रिलोचन सिंह, ज्ञानी चेत सिंह का मुंडा ਜਿਹੜੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹ त्रिलोचन सिंह जी, ਰਹਿਣ ਦੇ ਡੈਡੀ ਕੋਲ ਡੈਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ। त्रिलोचन सिंह जी ने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ त्रिलोचन ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਲੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੀ ਨਾ ਜਿਹੜੇ त्रिलोचन सिंह ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨੀ ਚੇਤ ਸਿੰਘ ਫੁੱਫੜ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਜੀਜਾ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਧਰੋਂ ਯੂਪੀਓਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਫੜ ਸੀ ਗਿਆਨੀ ਚੇਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਂਦੇ ਚੱਲ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਮਝ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝ ਲੱਪਿਆ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਉਹ ਪਰ ਉਹ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਚੱਲੇ, ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣਾ 8:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਥਾ ਇੱਧਰ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਕਥਾ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਇਆ। ਅੰਦਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਨਾਂ ਸਾਡਾ ਰਾਮ ਸਰਨ। ਪਰ ਉਧਰ 5 ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਤਾਸੇ ਪਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਟੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਛਕਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ? ਰਾਮ ਸਰਨ। ਤੇ ਰਾਮ ਸਰਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾ। ਉਹ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰਾਤ ਭਰ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ। ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਇਹਦਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਰਪਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰਾਤੀ, ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਕਿੰਨੀ ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ੀ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਤਾਕਤ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਨਾ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਦੱਸਦਾ। ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਵਾਂ ਦੇਖੋ ਜੋਸ਼ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ। ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਦੇਖੋ ਗਾਤਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾਨ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਯੂਪੀ। ਮੈਂ ਗਿਆ ਇੱਧਰ ਘੁੰਮਣ ਵਾਸਤੇ ਯੂਪੀ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਉਧਰ ਛੱਪੜ ਖਪਟਾ ਜਿਹੜੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਛਪਰੀ, ਹਾਂ ਛੱਪੜੀ ਪਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਐਸੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੇਟ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਰਦਾ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰੋਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਆ ਗਏ। ਓਏ ਰਾਮ ਸਰਨ ਆਏਗਾ, ਰਾਮ ਸਰਨ ਇੱਧਰ ਉਹ ਤਾਂ ਤਲਵਾਰ ਲਿਆ ਦਿਖਾ ਮੈਨੂੰ ਤਲਵਾਰ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਇੱਥੇ ਤੇਰੇ ਤੰਬਾਕੂ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਆਈ, ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਉਧਰ ਸਾਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਖਲੋਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਲਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੰਬਾਕੂਆਂ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਭਗਤ ਬਣ ਗਿਆ, ਬਾਹਮਣ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਫਲਾਣਾ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਹਾਲੇ ਗੁੱਸਾ ਚਲੇ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਉਧਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਮੈਂ ਝੀਟਾ ਦੇਤਾ, ਮੈਂ ਜਦ ਦੌੜ ਜਾਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਫੀਲ ਆਈ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਬਰਖੇੜਾ ਥਾਣਾ ਹੈ ਯੂਪੀ 'ਚ ਬਰਖੇੜਾ ਥਾਣਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਸਰਨ ਹੈਗਾ ਚੌकीदार का लड़का बस्थना गांव का, कहते उसने जो हैगा वहाँ से अमृतसर से लेके आता है हथियार, तलवार, कृपाना, गणा से लेके आता है, इधर आके बेचता है। तो ये पता नहीं जिन्होंने खंडे बाटे का गुरु गोबिंद सिंह जी का सिंह आया, ये गोद जन्म लेके आया, ये उन्होंने पता नहीं। उन्हें पता वही राम सरन है, पहले वाले गैया मज्जा चरता रहा, ठीक है। तो प्रभु सच्चे पातशाह जी उन्होंने थाने सवेर का टाइम ही, रात उन्होंने रिपोर्ट करती जाके सवेरे का टाइम ऐसे ही जाके सवेरे बोरा होंगे तो वो बेचारे के घर च इन्ना नहीं ही साढ़े अं झूठे में अपनी पिछली जी अपने औकात नहीं भूलते, जो पर अं गरीबी बहुत थी गुरु उस टाइम पर। तो उस टाइम गुरु से अं सुखमनी साहब का पाठ करके 5 पाठ सुखमनी साहब करके ता प्रसाद छकी देंगे। तो वो सवेरे सुखमनी साहब का जो पाठ करन दिया सवेरे तो नितनेम भी मेरा यही ही सुखमनी साहब का पाठ
अब तो नितनेम सारे परमात्मा बख्शिश करते थी बात बहुत ही परमात्मा जब से पाठ भी बख्शिश करती हरे संस्कृत भी सारी कर देती अकाल पुरख ने। ਉਹਦੇ बाद जिस वेले आया तो उस पाठ कर रहा इस तरह तो उधर उन्होंने ਜਿਹੜਾ ਵੀ SHO ही ज्ञान से हूँ बरखेड़ा थाने का निगोही का रहने वाला है। उस तो आगे बीसलपुर से आगे देखो निगोही है सजापुर के बीच पे तो उसमें आके उनने उस थाने आके तो जो थानेदार ही उनने आके बुला रहा मैंने सद रहा ओए राम सरन इधर आ ही सरदार लेकिन दाढ़ी बन्नी हुई ते नाल लाड़ी साहब बन्नी हुई तो वो बुला रहा मैंने वो भी अपनी जगह सही है मैं भी अपनी जगह कि सुखमनी साहब की मर्यादा की है कि अष्टपदी पूरी करके तो इस लोग पढ़ के फिर किसे जवाब दीजिए। वो अपने बलू पड़ी गुस्सा करी जाए तो वो कहने आओ ओए रंजीत सिंह इधर आ वो मैं जिन्नी जल्दी का मैं जल्दी अष्टपदी होवे तो मैं गल करा और जिन्नी जल्दी करा उन्हें पंक्ति भुल जावा तो फिर मैं पीछे दोबारा शुरू करा तो उन्होंने गुस्सा चढ़ी जाए और मैनू काली मैं कहाँ पिछा फिर चली जाए उन्हें आंदे आंदे लागे आया उन्हें लागे आके जिस वेले नाल ही ना मेरे इत्थे लागे ना वो सुनता क्यों नहीं जी बंदूक की नाल लैके सुनता क्यों नहीं वो तो उन्होंने उस स्टाफ के नाल 6-7 होर सिपाही है नाल एक SHO आप इंस्पेक्टर ते नाल जो वो कुदरती है परमात्मा ही वो ही सरदार तो उसने उसको समझदा है तो उन्हें जिस वेले जाया उन्हें आके जिस वेले मेरा बंदूक की नाली की थी ना मेरे ऐसे दोबारा तीजी बार तो उस अष्टपदी पूरी हो गई इस लोग पढ़िए वाला तीजी बार जिस वेले मेरे इत्थे सिर ते मारी ना सिर ते जो नाली माली सुनता क्यों नहीं तू वो जी सोटी सोटा भी नाली उन्हें फड़ी सिपाही ने फड़ी मारे मैं जिथे पुलिस वाले आते तू पता है भीड़ तो लगी जाती जिथे मर्जी चल जाओ चाहे इधर भी आ जाए तो अपने इधर भी पुलिस वाले उसी वेले मल्ले च लोग तमाश मीट खड़ो हो जाते कि उन्हें कहते आते फड़के जाओ राणा आत राणे फड़के लेके जाएंगे राम शरण को सारे ही आगे दौड़े आए या तेन पकड़ा जाएगा पता लगेगा इन किस तरह देखो तलवार दिखाई क्यों नहीं हमें उन्होंने भी अपने मन में हो ने तो इन्हें जिस वेले आया कहते ओए जिस वेले मेरे मारे तो सट भी लगे उस इतने जो आलना ही उत्थे आए जे कपड़े बिच रूमाल लपेट गुटका साहब रखा और जिस वेले पकड़ी लाइन मैं सटअप सुट डाउन और जिस वेले मैं फड़ी लाइन मैं खंड बेहंडंग खलदल खंडंग अतरन मंडंग बरबंडंग भुजदंड खंडंग तेज प्रचंडंग ज्योत मंडंग पान प्रवंग सुसंता करणंग दुर्मथरणंग किलव करणंग असरणंग जय 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 कर्ण सिट मम प्रतापण जय ते ओ कहंदा बाबा जी छड़ दो बाबा जी उसी वेले प्रभु से आज भी वो मेरे बस्तना वाले सारे कम गए सारे वो SHO बस मैं उन्होंने समझाई थी व्याख्या करके सुनाई उन्हें 500 रुपये कटिया कहते ले जिड़े आप उधर अमृतसर रहा कदू जाना फिर उन्हें समझाया मैंने ये हथियार नहीं है ये चंडी का रूप परमात्मा बख्शिश की है भगवती प्रथम भगवती सिमर का गुरु नानक लेत्या है मैंने प्रथम भगवती जी का आप रूप धारण किया है दिता है सानू तेग फिर उन्होंने माना तलवार नहीं है जितने तलवार करने सप्लाई कर तलवार मैं ना देवांगा दुराचारियों उन्होंने फिर परमात्मा के पास से उस वेले बड़ा कथा भी परिचय उन्होंने पढ़ाई चल गए तो आज भी परमात्मा के पास से बहुत ही अकाल पुरख ने मान दिता उस था जी इन्नी बेनती परवान वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी